Hello and good evening. I'm CA Nidhi Bhaskar and I welcome you all to my channel. Many students have been asking me, ma'am, APM is a paper which is very easy to interpret and understand, but when it comes to the pass percentage of APM, that actually backfires and scares us. What's the reason behind that? I'll simply say the approach of answering question that needs some working. The first problem which we have noticed as trainers is students are not able to understand the requirements of the question well. They don't understand what all is required to be answered. 50% they answer, 50% they skip. That's one major problem. Number two, giving the answer in sync with the case of the question. They write generic. Generic is not what APM wants you to do. APM wants you to apply those generic matters into the case. That is missing. And the third, use of proper format and structured answers. Students fail in using the correct format which is asked in the question, and then the overall structure of the answer also turns out to be quite confusing for the examiner to allocate marks. Now you will say, ma'am, these are the tips which we have always seen people giving on their YouTube handles. So I'll help you out in doing one thing. After this video, you are going to find one video which is a sample of question which I did in my batch for APM. That question will give you quite a better idea on how to interpret the question, how to write that answer, what all information you can give. At least that much idea you will get that, okay, this is the process which I need to follow. So immediately after I leave, you get into that questions mode. So before I leave, just to wish you all a very, very, very happy Diwali. Just stay safe, study well because you have to give your exams in December. Enjoy Diwali, but with a balance. I hope you will actually gain something with this question video. Till the time, take care, watch that and learn something. Bye. गुड इवनिंग एवरीवन. हम इस सेशन में पेपर डिस्कस करने वाले हैं एपीएम का. And here I will not be that much formal, Joe. I was there in classes because this is a class which is going to give you exposure on how the paper will look like, how you have to write the answers. So we will just exactly talk about the relevant portion जो examiner must देखना चाहेगा आपके पेपर में. That means he will definitely look for these points. He will definitely look for some terminologies. और हम answer को structure कैसे करेंगे, that we are going to see in this particular session. So this is the beginning where we will first see एक paper आता कैसे है. So this paper which I have picked up is 2020 का paper. So it follows the strict new pattern. You can see two sections here. Section A, section B. Section A has got only one question, 50 marker. Section B has got two questions. So ideally these two are 25 questions, 25 marker. But the best part is it's not as lengthy as SBL. That's the best part. So section A, this is the longer question, question number 1, which has got an appendix attached, and it ends here. That means maximum, how many pages did I scroll here? Just 2 pages. So even if it is a 50 marker question, just don't get scared. It is not going to be more than 2 pages. Right? So I'll quickly start reading this, and then I have targeted that I need to cover up one more question if time allows. But one question is for sure that I need to complete at least here. Let's just do this. You are a, organization information. So the first thing which is given to you is the information. You are a performance management consultant brought in by the Chief Executive Officer of the Department for Internal Affairs for the country of DLAND. The first thing which you need to remember in APM exam is jahan jahan jo important dikhta jaye, please start underlining it. That's the best thing you need to do. Now how do you do that in the exam? You have got a highlighter. P level exam दिया है यहाँ पे सबने? Yes, ma'am. दोनों ने?
है ना? हाँ, तो उसमें there is a highlighter which is मैम ये functional. मेरा पहला एग्जाम हुआ क्योंकि ठीक है, so Nitin, in that case also there is this highlighter which is available to you. You can highlight the important portions of the question. ओके उसके बाद में अब से in this class only we will see a format of a particular report, क्योंकि अब report writing करनी है. You should follow a particular format for that we will just see. ठीक है, just a second, I think, just a second guys. Okay, so let's just read this. So this is the country of Dealand. The department handles, among other areas, the policing of Dealand. That means what does this department do? Some policies they make. The CEO is a government employee reporting to the Minister for Internal Affairs. The Minister for Internal Affairs is an elected politician appointed by the leader of the Dealand government. Here, there is one thing which is important. There is a political interference in the company. So you can underline this. The government of Dealand has recently changed, and the new Minister for Internal Affairs has instructed the CEO of the DIA to improve the performance of the Dealand police by implementing Minister's new mission statement for DP. What is this DP? What is this DP? Dealand police. Right, so referencing का ध्यान रखना. Referencing is very big in ACCA P level papers. ये जो short forms use करेंगे, they will keep on guiding you कि short form है क्या. You have to just read पहले वाले paragraphs, उसमें बताया होगा ये. That means यहाँ पे पूरा question is going to revolve around performance of the Dealand police. So a new mission statement has been given to protect the community and prevent crime while providing a value for money service. This is the new mission statement. Underline this, please. This is a new mission statement. As part of this implementation, the CEO has identified the following 4 key areas for action. That means he has noticed that these are the 4 areas where an action, immediate action is required. 1. Protecting and supporting those at risk of harm, ensuring criminals are caught and brought before the courts, achieving long-term sustainable solutions to the causes of crime, and addressing new forms of crime arising in the virtual world. Virtual world means using technology. The electronic world, internet se related jo bhi crime hai, that is this, they are talking about this virtual world. The new minister wants general improvement in the first 3 of these areas. That means 1, 2, 3. As her political campaign was based around criticism of the previous government's perceived failure on these points. So typically she is much interested in these 3 because when she was campaigning for her political success, उसने इन तीनों को ही ज्यादा टारगेट बनाया था. That the previous government failed in dealing with first 3 issues. So these first 3 issues are her basic priority lines. Okay. Then it is widely agreed that in the second area, the major concern is the catching of criminals, since historically there is a high probability that once caught, they are brought before the courts. The third area is being addressed through increased involvement with local communities in order to identify and address the causes of crime. So this is very crucial. We need to underline this. These 2-3 lines. Let's read them again. इनमें मेजरली जो कंसर्न है वो बताई गई है. दैट इज व्हाई दीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वाइडली अग्रीड दैट इन द सेकंड एरिया मींस एंश्योरिंग क्रिमिनल्स आर कॉट एंड ब्रॉट बिफोर द कोर्ट्स. द मेजर कंसर्न इज द कैचिंग ऑफ क्रिमिनल्स. मतलब क्रिमिनल्स पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं. दैट्स द बेसिक थिंग विच दे आर स्ट्रगलिंग विद. सिंस हिस्टोरिकली there is a high probability that once caught they are brought before the courts. Understand the problem. What is the problem here?
इनको पकड़ा ही नहीं जा पा रहा है, मीन्स द प्रॉब्लम रेस्ट्स विद कैचिंग देम. तो कैचिंग इज अ प्रॉब्लम. And once they are caught, they are definitely brought in front of the courts. Getting the point? इस पूरी लाइन का इंटरप्रिटेशन आपको बहुत ध्यान से समझना है. The problem is regarding catching the criminals. Once they are caught, कोर्ट के सामने फिर तो वो आ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? उनको पकड़ना मुश्किल है. Catching the criminals is a problem. So underline this. Then the third area is being addressed through increased involvement with local communities. That means, what was the third area? Achieving long-term sustainable solutions to the causes of crimes. Identifying this is another problem. प्रॉब्लम नंबर 3 जो पॉइंट 3 में एड्रेस की गई है, इसका सोल्यूशन इन्होंने क्या किया? They have just decided that we need to be better involved with local communities so that we can understand that what may be the causes of crime. The fourth area of crime in the virtual world, the use of computers to facilitate crime, was hardly addressed under the previous government. That means this is a new scenario which wasn't there with the previous government's tenure. And the minister wants to see the creation of a task force which will develop skills in detection and prosecution of virtual crime. That means for problem number 4. अच्छा, इनके let me just put up the numbers जो इनके problem numbers के हिसाब से चल रहे हैं. So I am talking about problem number 4. ये थी problem number 3. ये थी problem number 2. For problem number 4, they are just thinking कि एक task force place में होनी चाहिए. Plus, they need to be equipped with virtual crime detection. यानी उनकी स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है. किस चीज की स्किल डेवलपमेंट? which can catch virtual crime. So development of skills to catch virtual crime. So these are some areas which they are struggling to कि हमें पुलिस डिपार्टमेंट को इन प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन देना है, और सोल्यूशन देने के कुछ आइडियाज भी उन्होंने खुद ही ने ड्राफ्ट अप कर दिए. CSFs and KPIs. Now, critical success factors. And ये KPIs क्या होते हैं? What are these KPIs? Key performance Key indicators. performance की indicators. परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. तो उन्होंने कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कि हमें सक्सेसफुल होने के लिए ये चीजें सबसे क्रिटिकल है वो भी डिसाइड कर दी, और केपीआईज भी डिसाइड कर लिए. इन अ रीसेंट मीटिंग विद द सीईओ, the minister indicated that she felt that the 4 key areas were too vague, and in order to better focus actions, the minister's advisor has suggested the following critical success factors. As per them, these 4 problematic areas which they highlighted, ये बहुत बहुत बड़े बड़े हैं, थोड़ा सा इनको jot down करना है. So CSFs have been advised as greater protection and more support for those at risk of harm. Number 2, be better at catching criminals. ये देखो दूसरी problem. Make sense? Reducing the cause of crime by increased involvement with local communities. यही बात थी यहाँ पे भी. And create a task force to develop skills in detection and prosecution of virtual crimes. मतलब टास्क फोर्स डेवलप करनी है, क्रिएट करनी है. वर्चुअल क्राइम को कम कैसे करना है उसको इन्होंने ब्रेक कर, इनको ब्रेक कैसे करना है? दी फोर्थ वन को देखो, इनका टारगेट क्या था कि वर्चुअल जो भी क्राइम हो रहा है वी नीड टू कैच दैट. उसके लिए टास्क फोर्स बनाना, टास्क फोर्स में स्किल डेवलपमेंट करना, CSF बना दिया इन्होंने. दैट द क्रिएशन ऑफ टास्क फोर्स इज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. तो सबसे पहले अगर ये टास्क फोर्स बन गई, हमें अपने आप ही उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना, कितना हम उसको अचीव कर पाए वो देखने में वी विल बी सक्सेसफुल. Initially, the CEO did not see why the 4 key areas originally given could not be used as CSFs. He wants you to provide justification in the light of the minister's concern. कुछ यहाँ पे दिक्कत लग रही है, कभी मिनिस्टर शी के नाम से डिनोट की जा रही है, कभी मैन की तरह की जा रही है. The minister indicated that she felt that the 4 were too vague.
और यहाँ पे बात हो रही है मिनिस्टर्स कंसर्न फॉर द चेंजेस he wants you to provide. Can anyone identify this कि he or she का चक्कर क्या है? ये मिनिस्टर जो है ये मेल है कि फीमेल है? शायद यहां से तुम्हें पता चल जाए. गाइस तुम इसको पढ़ के बैठे हो पहले? नो. Yes, ma'am. बताओ फिर who is this minister? Minister is a male or a female? मिनिस्टर फीमेल ही है मैम. ये देखो हर political campaign. Yes, ma'am. female. Then how come this initially the CEO did not see why the 4 areas originally could not be used? He wants you. ये minister तो she है, ये he कहाँ से आ गया? अबे सीईओ है ना ये. CEO है. ध्यान रखना, you have to be very careful while reading the questions. ये CEO की बात हो रही है. तो यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व है. कौन है? एक तो मिनिस्टर है. मिनिस्टर इज अ फीमेल. एक सीईओ है. कौन है सीईओ? डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स का सीईओ है. ये जो डिपार्टमेंट है यही पुलिस को हैंडल करता है. पूरा ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? देयर इज अ सीईओ हु इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई. मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स है इसकी डीलैंड की. मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स का सीईओ ये बंदा है गवर्नमेंट एम्प्लॉई. ये डिपार्टमेंट करता क्या है इंटरनल अफेयर्स वाला? ये पुलिस डिपार्टमेंट को हैंडल करता है. अब ये जो मिनिस्टर आई है इंटरनल अफेयर्स वाली वो इलेक्शन जीत के आई है और उसने क्लियर टारगेट रखा है कि भाई मुझे यहाँ पे सक्सेस पॉइंट्स चाहिए. तो पहला तुम्हें समझने की बात ये है हाउ इज दिस होल स्ट्रक्चर गोइंग ऑन. द फर्स्ट थिंग इज देयर इज दिस डिपार्टमेंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे देश का भी है. ऐसे ही वहां पे है डिपार्टमेंट फॉर इंटरनल अफेयर्स. ये डिपार्टमेंट को हेड करती है एक मिनिस्टर. दिस मिनिस्टर इज अ फीमेल but the overall functioning is done by the CEO, the chief executive officer. He is a male. ये डिपार्टमेंट क्या करता है? It takes care of the police of this place, D-land. अब समझ आया कि ये जो टारगेट्स रखे गए, जो प्रॉब्लम एरियाज रखे गए हैं, ये पुलिस से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि नई मिनिस्टर पॉलिटिक्स में अभी कैंपेन करके पॉलिटिशियन बन के आई है, जीत के आई है. सो शी हैज गिवन अ न्यू मिशन स्टेटमेंट. पूरे डिपार्टमेंट को शी जस्ट वांट टू टर्न अराउंड एंड रेवोल्यूशनाइज. उसके लिए कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स बताए गए हैं. एंड हियर व्हाट दे आर सेइंग इज कि सीईओ कुड नॉट अंडरस्टैंड इनिशियली कि ये जो 4 पॉइंट दिए गए हैं हम इनको ही क्यों नहीं सीएसएफ बना सकते. Now he wants you to provide justification in the light of the minister's concerns for the changes which the advisor has made to each of these. Means now here the question starts. इसको अंडरलाइन कर दो. मतलब सीईओ को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीएसएफ अलग क्यों कर दिए गए हैं. मतलब एक तो ओवरऑल मिशन के 4 स्टेटमेंट्स हैं, उनसे सीएसएफ को अलग क्यों किया गया है ये समझना चाह रहा है. पहला क्वेश्चन समझ में आया. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट. बोलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. आगे. Then using the above CSFs, he want you to provide justified recommendations of up to 2 key performance indicators as per CSF in order to measure performance. What is the second requirement? Number 1, mission statement और CSFs अलग-अलग क्यों रखे गए? That is concern number 1. मिशन वर्सेस सीएसएफ ये अलग क्यों रखे गए? मिशन स्टेटमेंट्स को सीएसएफ की तरह यूज क्यों नहीं किया जा सकता था? दैट इज वन थिंग विच यू नीड टू हेल्प दिस सीईओ अंडरस्टैंड. नंबर 2, व्हाट इज अनदर थिंग ही वांट्स टू अंडरस्टैंड? recommendations. Your recommendations. क्या recommend करना है? 2 KPIs per CSF. How many CSFs were there? 4. Four. And per CSF, he wants you to recommend 2 KPIs. यानी requirement miss हुई, examiner ने number काट लेने. And this is where APM actually makes students fail.
स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, देना क्या है, तो रिक्वायरमेंट से ही नहीं मिलेगा क्या देना है, यहां से भी मिलेगा. दिस पूरा पैराग्राफ रिलेट्स टू रिक्वायरमेंट. लिख लो बुक में इसके पास में रिक्वायरमेंट. दिस इज द रिक्वायरमेंट. ये बुक का भी पहला क्वेश्चन है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लेटेस्ट बुक. ठीक है, शैल आई मूव अप? Yes, ma'am. चलो. In order to help you with the KPIs, the CEO has provided you with the table of data which has been used in the past when considering DPs. ये DP क्या है? Deal and police. Deal and police. So deal and police की performance के लिए there is a table of data which is given to you जो past में भी इनकी performance evaluation में use की जाती थी. However, you are allowed to suggest new data which would help in measuring performance. तो clearly इसको भी लिख लो. Your recommendation can include new data. नया डेटा कैसे लाएंगे वो देखेंगे अपेंडिक्स से, क्योंकि इससे पक्का कोई ना कोई आपको इंटरप्रिटेशंस निकलेंगी which you can recommend, which you can use while you are recommending KPIs. ठीक है. The CEO has made it clear that at this stage no calculations are required. Please see, no calculations. If you do any calculation, the examiner is not going to give you any marks. और क्लियरली इस बार भी एग्जामिनर ने लिखा था बच्चों ने मना करने के बावजूद कैलकुलेशंस की. डोंट डू एनीथिंग व्हिच इज क्लियरली रिक्वायर्ड एज नो, मत करो. देन वैल्यू फॉर मनी. Since Deal and Police DP is funded wholly through Deal and's general taxation, the CEO wants to be able to report on whether DP is providing a value for money service as required by the new mission statement. Value for money दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वो भी उसको पता करना है. He has heard of the 3 E's but needs an explanation of these 3 headings and how this links to the work on CSFs and KPIs already requested. अगर क्वेश्चन यहाँ 3 E's का रेफरेंस ना भी दे एग्जाम में, द मोमेंट यू हियर दिस वर्ड्स वैल्यू फॉर मनी, ये 3 E's आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में आने चाहिए. वैल्यू फॉर मनी इज इनकम्प्लीट विदाउट द 3 E's. Then he requires an evaluation. That means I again have another requirement. Please just note these up. इनको एक बार लिख लो. I need to clear out the screen. लिख लिया? Yes, ma'am. Now what will we do for value for money? यहाँ requirement क्या है? Again, let's just analyze that. The CEO wants to be able to report on whether DP is providing a value for money. First requirement, reporting if value for money is being provided by Deal and Police. फर्स्ट चीज ये बतानी है, मिस नहीं करना है. वैल्यू फॉर मनी दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, इस पे रिपोर्ट देना. He has heard of 3 E's but needs an explanation. That means the second requirement is explanation on of these 3 headings and how this links to the work on CSFs and KPIs already requested. Explanation on 3 E's and their link then he requires an evaluation using the data given in Appendix 1 of whether DP provides such a service. He understands that the evaluation may be limited as Appendix 1 may not give a data set to perform a full VFM exercise, यानी partially.
अगर आपको ये लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, दैट्स फाइन, क्वेश्चन ने भी एडमिट कर लिया कि इन्फॉर्मेशन हो सकता है पूरी नहीं हो, पर जितनी है आप उसके बेसिस पे इवेल्युएशन करो इनका. गॉट इट? Yes, ma'am. अब आते हैं NFPIs पे, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. The new minister has come from a business background into politics, and so far, in departmental discussions, she has focused heavily on the financial aspects of running the Department of Internal Affairs. Business background से आती हैं वो. We need to highlight this. She is coming from a business background and she heavily focuses on the financial aspects of running this department. The CEO wants to help her change focus towards using non-financial performance indicators. यहीं तक देख के तुम्हें दिमाग में घंटी नहीं बज रही? That means there is a conflict between the CEO and the manager when she is just concentrating on financial numbers because she comes from a business background, but the CEO wants her to consider some non-financial performance measures also. Got that? यानी यहाँ पे NFPIs की relevance पे पक्का बात आएगी. Then, and so to understand why financial indicators are not particularly useful for public sector organizations such as DP, relevance and या ये बोलते हैं relevance in case of this department. The CEO wants you to explain this in your report and illustrate your explanation with examples relevant to DP. That means you have to explain the relevance of NFPIs with examples. With examples, you have to explain this. Copy कर लो इसको भी एक बार. Then we go ahead on to league tables. जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट आप पकड़ लेंगे ना, उतना ही आपको एग्जाम में आंसर लिखना इजी होगा. Because you will be in a position to know कि ठीक है मुझे ये चीजें लिखनी है. डन. आ जाऊं लीग टेबल पे. Yes, ma'am. League tables. The minister is interested in benchmarking as this was often done during her days in business. As a result, she joined an international initiative for creating a league table of fire service data by sharing information with other nearby countries. The CEO believes that the minister will want to introduce this idea for DP and so wants an assessment of the use of an international police force performance league table and its link to targets for DP. What is a league table? ये नाम सुना हुआ लग रहा है क्या कहीं पे? Yes, ma'am. मैंने रिकॉर्डिंग में इसका एक स्नैपशॉट भी दिखाया था. क्रिकेटर्स का था या कॉलेज का था, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि कॉलेज का. ये क्रिकेटर्स के लिए ज्यादातर यूज होता है. जैसे हम बोलते हैं ना, महेंद्र सिंह धोनी इतने ODIs, इतने टेस्ट रन्स compared to विराट कोहली, then compared to someone else, then compared to कपिल देव. ये सारे के सारे जब कंपैरिजन से किसी की रैंकिंग निकलती है, that is done through league tables. अब यहाँ लीग टेबल में क्या हो रहा है? The only problem which is coming up is the minister. She wants, वो इंटरनेशनल इनिशिएटिव में गई, एक फायर सर्विस डेटा है. I mean, you are in the police department. You are the head of a police department, minister of police department. आप फायर सर्विस वाले की लीग टेबल को अपने डिपार्टमेंट में कैसे लगाओगे? नंबर 1. नंबर 2, दैट्स इंटरनेशनल. एग्जैक्ट यहां कैसे लगेगी? गेटिंग द पॉइंट? मतलब एग्जैक्ट कंपेरेबल नहीं बैठ रहा है यहाँ पे. जो लीग टेबल हो रही है फायर सर्विस डेटा की, वो उसने देखी है. इंटरनेशनल एक इनिशिएटिव हुआ है ये नियर बाय कंट्रीज के साथ. शी हैज जॉइंड दैट पार्टी. कुछ लोगों ने मिलके ग्रुप सा बना लिया कि चलो हम एक लीग टेबल इस तरह से क्रिएट करेंगे, सम ग्रुप ऑफ कंट्रीज. वो लीग टेबल एड्रेस करेगी फायर सर्विस डेटा को. और अब सीईओ को ये लग रहा है कि ये जो मिनिस्टर है, शी इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस आइडिया इन द पुलिस डिपार्टमेंट ऑल्सो. सो नाउ व्हाट ही वांट्स इज कि क्या इंटरनेशनल पुलिस की जो लीग टेबल्स हैं वो यहाँ पे
रखी जा सकती हैं as targets for our police? The CEO is specially concerned about the police officers' reaction to this new idea, as they have a powerful union which has widespread police support. क्या बोलते हो? That means clearly preparation of league tables is not going to be accepted very happily by the existing policemen. वो भी इंटरनेशनल, यानी आपके खुद के सर्कमस्टांसेस वाली नहीं होगी, वो एक इंटरनेशनल लेवल की होगी, जहां पे हो सकता है आपका कंपैरिजन दूसरे देशों की पुलिस से भी होने लग जाए. That's going to be a problem. The CEO is specially concerned about the police officers' reaction to the new. यहाँ पे ये powerful union वाली बात underline कर लो, because it's going to be a problem when you apply this new idea. Therefore, he also needs you to explain how the use of league tables and targets might affect police officers' behavior. Another requirement. Impact of league table use on the behavior of police officers. This is the fourth requirement. Required. It is now 1st September 2015. Write a report to the CEO of the Department for Internal Affairs to respond to his instructions for work on the following areas. 1. Critical success factors and KPI indicators for deal and police. ये इन्होंने चल के बोल दिया, हम पहले ही लिख चुके थे. Did we write this in our requirement? Yes, ma'am. ठीक है. दूसरा, an evaluation for the value for money service provided. क्या हमने ये लिखा था रिक्वायरमेंट में? लिखा था. फिर यूज ऑफ NFPIs, क्या हमने ये लिखा था? लिखा था. यूज ऑफ लीग टेबल्स इन मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डील एंड पुलिस, क्या हमने लिखा था? लिखा था. ये मैं तुम्हें क्यों सुना रही हूं? There may be a possibility that these four are missing in your exam question. And they may ask you to write a report to the CEO of the Department of Internal Affairs to respond to all his queries mentioned above. तो आपके पास ये जो अभी अपन ने लिस्ट बनाई थी ना, ये इसलिए आपको क्वेश्चन की हर लाइन से पकड़नी जरूरी है. एंड these lines will help you in framing an answer to such a question. Here तो they have just given you a brief because they wanted to give you these marks allocation. ये हो सकता है ये मिसिंग हो, ये सिर्फ ऊपर ऊपर का लिख दे. Talking about CSFs and KPIs 16 marks. कवरेज ऑफ वैल्यू फॉर मनी इन द रिपोर्ट 13 मार्क्स. तो आपको पता कैसे चलेगा कि वैल्यू फॉर मनी के बारे में लिखना क्या है? क्वेश्चन से पता चलेगा. ऊपर इन्होंने बार बार अलग अलग बताया है. Got it? So the first exercise which you need to do when you are handling APM is understand the requirement properly. उसमें जल्दबाजी नहीं करना. आगे प्रोफेशनल मार्क्स. ये क्या है प्रोफेशनल मार्क्स? प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं जो डिफाइनेबल नहीं होते हैं. ये जो 4 मार्क्स प्रोफेशनल मार्क्स इन्होंने डाले हैं, इसका मतलब इन्होंने कैसे बोल दिया कि आप तरीके से लिखो, प्रोफेशनली लिखो, तो हम आपको 4 मार्क्स देंगे. अब ये प्रोफेशनली लिखना क्या होता है? टू द पॉइंट लिखना, जिस फॉर्मेट में मांगा गया है उसको लिखना, जिसको लिख रहे हो उसी के रेलेवेंस की चीजें लिखना. सीईओ को लिख रहे हो, HR की बातें मत करना, नंबर्स की बातें मत करना. उसको नंबर्स से कोई लेना देना नहीं है. उसको सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस जिस चीज पे उसने जो जो चीज पूछी वो बतानी है. सो प्रोफेशनल राइटिंग का मैं सिंपल एक एग्जांपल तुम लोगों को दूं. दैट इज सिंपली व्हेन समवन कम्स अप एंड आस्क्स यू हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव, व्हाट शुड बी योर आंसर? राम, मोहन, सोहन, भरत, शत्रुघ्न, एक का नाम रावण, एक का नाम श्याम, एक का नाम रामू प्रसाद, एक का नाम लैला प्रसाद. 12 बच्चे हैं जी. This is not a way of professional writing. To the point. उसने क्या पूछा? कितने हैं? 12 हैं. That's it. And when he comes up asking, क्या नाम है उनके? Then only you need to explain. जगह जगह एग्जामिनर्स यहाँ पे लिखते हैं, जो नहीं पूछा होता अगर वो बच्चे लिखते हैं, we do not allot marks for that. ठीक है? So इस चीज का ध्यान रखना है. आगे बढ़ते हैं अब. Appendix 1. So what is Appendix 1 saying? Deal and police डेटा फॉर ईच ईयर एंडिंग 30th जून. ये कितने सालों का डेटा दे दिया उन्होंने आपको? 3 सालों का. यू आर एट 30th सितंबर 2015. सो अप्रोक्सीमेटली ये आपका नया वाला साल है. पूरा एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा आज की डेट से, पर ठीक है. 2015 30th जून का डेटा है.
हम तो सितंबर में ये रिपोर्ट लिख रहे हैं, उसके 2-3 महीने बाद। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फर्स्ट कॉलम में है, देन 2014, 2013। पॉपुलेशन आपको दे दी है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है लेकिन बहुत तेज नहीं बढ़ रही है। नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स 38,400 से दे हैव गॉन डाउन एवरी ईयर। हर साल दर साल कम हो रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स। नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 12,075, they increased in the next year, then further increased in the next year. Number of crimes reported in the year, number of crimes are going up too much. Number of police officers is going down. Number of crimes reported in the year are going up. Number of violent crimes reported in the year. What say? Bhumika, क्या पैटर्न दिख रहा है? Violent crimes reported in the year. Is increasing from one year to another. Increasing greatly. ठीक है. Then number of crimes solved in the year. नितिन, what say? क्या पैटर्न दिख रहा है इस पे? कम हो रहे हैं। हाँ, ये तो क्राइम सॉल्व ना। हाँ जी, कम। हम we were on a better stage पहले साल में, then we went down, फिर we further went down. और ये ध्यान है मिशन स्टेटमेंट में she had put this. Solving cases, criminals को पकड़ना, इसका मतलब आप criminals को पकड़ ही नहीं पा रहे हो, crime solve ही नहीं कर पा रहे हो। इसका पुलिस एक ऑफिसर्स सोल्यूशन भी ये भी कम हो हो गए सकता ना। है, हाँ, कि सोसाइटी से भी आप टच में नहीं आ पा रहे हो कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ क्राइम, जिसकी वजह से ना तो क्राइम सॉल्व हो पा रहे हैं ना रुक पा रहे हैं। पुलिसमैन भी आपके कम होते चले जा रहे हैं। दिस इज हाउ यू विल हैव टू लिंक योर आंसर्स। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इंक्रीजिंग, रेस्पॉन्स टू एन इंसिडेंट विद इन द एलोकेटेड टाइम लिमिट, ये भी नीचे जा रहा है। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, रेस्पॉन्स टू एन इंसिडेंट विद इन द एलोकेटेड टाइम लिमिट, व्हाट इज दिस? आशी, ये क्या है? Yes, ma'am. ये है क्या चीज? मैम ये रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहे, मतलब ये जो टाइम होता है क्राइम का कि जब तक इन लोग को इन्वेस्टिगेशन करनी थी उस टाइम तक तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहे, बहुत कम हो चुका है इनका। कैन इट बी कि पुलिस को बुलाया और 2 घंटे बाद आई? यस मैम। वो भी हो सकता है। एक इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट पे आपको रिस्पॉन्ड करना था। इट कैन बी इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो, आई एग्री टू योर पॉइंट ऑल्सो कि वो बिल्कुल Yes, ma'am. इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी हो सकता है, यस लेकिन वो मैम। ये भी हो सकता है कि आपको पीसीआर होती है, इट हैज गॉट अ टाइम लिमिट कि जैसे ही आपका कंट्रोल रूम में मैसेज पहुंचता है ना, नियरेस्ट पीसीआर एलोकेट की जाती है और उसका भी टाइम लिमिट होता है कि आप इतनी देर में पहुंचे कि नहीं पहुंचे। दैट टाइम लिमिट, जस्ट सी दिस पैटर्न, ये भी नीचे जा रहा है साल दर साल। यानी आपका जो टाइम रिस्पॉन्स का जो टाइम है वो टाइम भी ये कम हो रहा है, या फिर परसेंटेज उस चीज की है कि आपका रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा। ये परसेंटेज क्या बताती है? ये पुअर परफॉर्मेंस बताती है। पहले आप 87% केसेस में विद इन टाइम लिमिट पहुंच जाते थे, देन इट वेंट डाउन टू 86% ऑफ द केसेस एंड नाउ इट इज 84% ऑफ द केसेस। दैट मीन्स इफ एलोकेटेड टाइम लिमिट इज 15 मिनट्स, नाउ योर परफॉर्मेंस इज गोइंग डाउन। पहले आप 87% केसेस में पहुंच जाते थे टाइम पे, नाउ इट्स 84%। अगेन यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट चाहिए। कॉस्ट ऑफ पुलिस फोर्स फॉर द ईयर, how is this going? Great, increasing. Wow. Staff costs, all staff including police officers, staff cost is going down. Staff cost कम कैसे हो गई? पुलिस फोर्स की कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन स्टाफ कॉस्ट ये कम हो गई है। स्टाफ कॉस्ट क्या है? If they haven't given any idea, then you will have to just assume something. नहीं, कुछ भी नहीं दिया है। एडमिन स्टाफ के ऊपर वो था। एडमिन स्टाफ हो सकता है, ये स्टाफ के ऊपर ट्रेनिंग का खर्चा हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, राइट, ये भी हो सकता है। बट ये बढ़ रहे हैं और इनकी कॉस्ट कम हो रही है। राइट, कॉस्ट कम हो रही है, मतलब सैलरी पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। चलो जो भी है, चलो अब लिखना क्या है? अब लिखनी है रिपोर्ट। रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है, यू कैन नॉट जस्ट राइट इट ऐसे ही कैसे भी उठा के। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? पहले तो जिस भी कॉपी में इस क्वेश्चन को कर रहे हो उसमें फॉर्मेट लिखो। हम आगे से जो भी रिपोर्ट्स बनाएंगे वो उसी फॉर्मेट में बनेंगी और यही फॉर्मेट आपको यूज करना है। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात ये आपको डेट दे दी। अगर डेट क्वेश्चन ना दे तो क्या करना है? तो लिखना है टुडेज डेट। सबसे पहले आप इसको एड्रेस करेंगे टू जिसको भी दे रहे हैं। ये किसके लिए बन रही थी? सीईओ, नो शॉर्ट फॉर्म्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये किसका है वो भी मेंशन करना, किसका सीईओ की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद में कौन है लिखने वाला?
हम कौन है? पक्का बताता है क्वेश्चन, हम हैं कौन? इसने फर्स्ट लाइन में ही बताया था, हु आर वी? मैनेजमेंट कंसल्टेंट। बिल्कुल। आप यहाँ पे कौन है? मैम यू आर अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंसल्टेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंसल्टेंट। So you simply have to write from performance management consultant. ये मैं PM कंसल्टेंट लिख रही हूँ, एग्जाम में पूरा लिखना है, इसमें शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। आप PM कंसल्टेंट है। उसके बाद में एक डेट भी दी गई थी कि आज की ये डेट है, उसका कोई रेलेवेंस तो होगा। डू नॉट स्किप एनी इंफॉर्मेशन। डेट कहाँ दिखी थी? इट इज नाउ 1 सितंबर, तो आप सबसे पहले डालते हैं डेट। थोड़ी सी जगह छोड़ना, डेट डालो। जैसे अपन एप्लीकेशन लिखते थे ना, टू द प्रिंसिपल टाइप्स, वही है ये। अच्छा, मैं बोलते टाइम आई से 2015, प्लीज डू नॉट राइट 2015, इट हैज टू बी रिटन इन द वे इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में होता है सब्जेक्ट। जब भी कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनता है, इट्स ऑलवेज रेकमेंडेड दैट यू पुट अप अ सब्जेक्ट। अब आप सब्जेक्ट कर क्या रहे हैं इसमें? करना क्या चाह रहे हैं इस रिपोर्ट में? बहुत सारे मैटर्स हैं, लेकिन किससे रिलेटेड है वो सब्जेक्ट डाल दो। ठीक है? डील एंड पुलिस के बारे में परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूवमेंट मेजर्स, इम्प्रूवमेंट मेजरमेंट मैटर्स रिलेटेड टू डील एंड पुलिस। बस ये हम इसके बारे में लिख क्या रहे हैं? इनके इम्प्रूवमेंट मेजरमेंट जो परफॉर्मेंस मेजर्स आए हैं, केपीआईज और सीएसएफ परफॉर्मेंस में आ जाएंगे। डील एंड पुलिस से रिलेटेड जो भी है वो कवरेज है इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में। अब एक चीज, रिपोर्ट में थोड़ा सा एक यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या आप यहाँ पे डियर सर डियर मैम लिखते हैं जिसको एड्रेस करते हैं? नो मैम। प्रैक्टिकली लिखा जाता है, एसीसी नहीं लिखता, तो वो सीधा यहां से आंसर चालू कर देते हैं। अब दो तीन चीजों में ध्यान रखना, इसकी शुरुआत कैसे करते हैं हम। प्रोफेशनल लैंग्वेज की बात में आएगी। सबसे पहले दिस रिपोर्ट इज इन कनेक्शन विद, ये लिखना हमेशा। दिस रिपोर्ट इज इन कनेक्शन विद। अब एक एक करके ले लो। दिस इज इन कनेक्शन विद द इवैल्यूएशन और एनालिसिस ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड केपीआईज लिंक, मतलब केपीआईज के ऐसे केपीआईज लिंक टू द मिशन स्टेटमेंट एंड क्रिटिकल एरियाज ऑफ परफॉर्मेंस फॉर डील एंड पुलिस। फर्दर मतलब और भी, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनका ध्यान रखना, आपको ये वर्ड्स यूज करने हैं। फर्दर this report will bring up or highlight the evaluation for value for money service provided by deal and police. और वर्ड लिखो। अब ये नेक्स्ट वाले को क्या लिखोगे? in addition to these the relevance of using non-financial performance indicators is also covered under this report. और यूज ऑफ लीग टेबल्स के लिए अब क्या लिखेंगे? चौथा मैटर आप लिख रहे हो, इसके बाद में खत्म कर दोगे ना अपनी इसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, या फिर फाइनली, या फिर as a conclusive matter of evaluation. The relevance of using league tables in measuring the performance of deal and police is also covered under this report. आपका पहला पैराग्राफ
किन मुद्दों पे आप बात करने वाले हैं उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, और उनमें ये वर्ड्स ध्यान रखो, हमेशा ये वर्ड्स तुम्हारे काम आएंगे, बिकॉज एवरी टाइम यू विल बी मेकिंग अ रिपोर्ट यू विल बी डिस्कसिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट एरियाज. अब उनको कैसे लिखोगे? डोंट राइट दिस. फर्स्ट, critical success factor and KPIs are discussed. Second, evaluation of value for money is discussed. No, this is not the way of writing a formal thing. Use these words further in addition to the above. अगर ये लास्ट है तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, या फिर एज अ कंक्लूसिव मैटर लास्ट में. ठीक है, ये कुछ वर्ड्स लिख लो अपनी कॉपी में, विच यू हैव टू यूज व्हाइल एक्सप्लेनिंग देम वन बाय वन. डन? आगे बढ़ जाऊं? लिख लिया? Yes, ma'am. Now let's just begin one on one. Now how do you decide मुझे कितना लिखना है, कैसे लिखना है? आंसर आई एम श्योर तुम्हें आता होगा. पहला है CSFs एंड KPIs. ये मिशन स्टेटमेंट से सेपरेट करके बनाए गए हैं. दिस वॉज टू बी हाईलाइटेड. तो जो मैंने वहां पे इवेल्युएशन डाली थी वो सारी चीजें हम यहाँ लिखेंगे. बट नाउ व्हाट यू हैव टू डिसाइड इज you have to build up an answer to score 16 marks. What are you going to write? Always as a method of writing answers in APM, first give a brief of what is the matter. आप केस के बारे में पहले बताएंगे. तो यहाँ पे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, KPIs, क्या मिशन स्टेटमेंट था, उसके लिए क्या KPIs बने हैं, क्या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स बनाए गए हैं, प्लीज ब्रीफ देम. So ideally, I will have to use first 4 sentences which became the mission statement. These four key areas of action. In your own words, please do not cut copy from the solution. It looks like कि आप question को समझ नहीं पाए हो, इसलिए वहां से उठा के you are just picking up and writing. So simply here you have to write, on the joining of the new minister in the Department of Internal Affairs, immediately there were 4 key areas of action decided and identified by the team, by the CEO. These 4 key factors are, ये 1 2 3 4 ऐसे कैसे उतारने हैं, क्योंकि आप बता रहे हो कि ये 4 areas consider किए गए थे. Upon discussion with the कहां गया advisor वाला point जिसने इनको breakup किया था, ये रहा. When further these areas were discussed, the minister's advisor suggested that these should be broken down into critical success factors to simplify them, to make them more clear, to make them elaborative. Accordingly, word एक और लिखो, accordingly. Accordingly, the following 4 were created as critical success factors to bring more clarity to the mission statements or to the major areas identified as corrective areas. ठीक है, ये मोटा मोटा आपका 4 पॉइंट इधर हो गए, 4 पॉइंट इधर हो गए. आउट ऑफ दीज 16 मार्क्स, नाउ यू आर रेडी विद एट लीस्ट 5 मार्क्स ऑफ कंटेंट. यू हैव एक्सप्लेन्ड क्या क्या हुआ है और आप समझें. अब बात करेंगे इनके लिंक की. क्या क्या चाह रहा था वो इनके केसेस में? द रिक्वायरमेंट इज अगेन हियर. ही वांटेड that how these are could not be used, why the 4 key areas cannot be used as CSFs. So the answer first should be on this. Let's first see this. Greater protection and more support for those at risk of harm. ये जो first वाला था, that is protecting and supporting those at risk of harm. How do you do that? This clearly explain. So this is a target जो ज्यादा वल्नरेबल है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बच्चे वल्नरेबल हैं, women are vulnerable to more crimes. Now how do you protect them? How do you support them? You give them greater protection. You give them more support. कैसे सपोर्ट दोगे उनको?
wherever they are going at any workplace, वहां पे just support them in a way, making some policies which are very strict. जैसे बहुत सारी big companies में they have a zero tolerance against any sexual assault happening on any of the employees. This is a type of support which you are extending to such category vulnerable classes of society. Greater protection कैसे? जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत साल पहले बात आई थी कि हम बसेस में लेडी गार्ड्स अपॉइंट करेंगे. दैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स ग्रेटर प्रोटेक्शन. सो ये सीधा सीधा इसको करता है कि डायरेक्टली इट इज गोइंग टू हेल्प अटेन दैट, ये वाला फर्स्ट पॉइंट. तो वन पॉइंट को इससे लिंक करना है. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू लिंक इट. दूसरा, बी बेटर एट कैचिंग क्रिमिनल्स. इसको क्या बोलोगे? इससे भी क्या होने वाला है? एंश्योरिंग क्रिमिनल्स आर कॉट. आप क्रिमिनल्स को कैच करने में बेटर बनो. इनका मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ आप अपने आप में सुधार लाओ. जहां जहां पे क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ पा रहे हो, डू समथिंग एंड ट्राई टू जस्ट ग्रैब देम. इससे भी डायरेक्टली आपका पॉइंट नंबर 2 बन जाता है. देन पॉइंट नंबर 3, अचीविंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन टू द कॉजेज ऑफ क्राइम. मतलब लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसे स्टेप्स लो जिसकी वजह से क्राइम अपने आप ही पकड़ में आए, उसका सोल्यूशन अपने आप हम लंबा निकाल सकें. तो लोकल कम्युनिटीज के साथ अटैच होना, ये भी इंप्रूवमेंट है. दैट्स गुड. आप अगर लोकल कम्युनिटीज के साथ में लिंक में रहेंगे, यू विल बी बेटर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ द क्राइम, एंड देन ओनली यू कैन जस्ट गिव अ सोल्यूशन टू इट. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द क्राइम, देन वी कैन रेकमेंड अ सोल्यूशन टू इट. दैट इज ऑल्सो, ये जो मैं बोल रही हूँ सब लिखना है तुम्हें. देन नेक्स्ट फोर्थ वाला, अड्रेसिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ क्राइम जो वर्चुअल वर्ल्ड में होते हैं. इसके लिए क्या करना? टास्क फोर्स बनाना. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. ये जो टास्क फोर्स बन जाएगी, टास्क फोर्स विल एक्चुअली सपोर्ट एड्रेसिंग दिस न्यू फॉर्म ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड, बिकॉज दे विल बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू एड्रेस दिस पॉइंट. तो अभी तक तो हमने ऐसा देखा कि तुमने अगर कंटेंट नहीं भी पढ़ा हो तो भी यू कैन आंसर दिस मच. दिस विल गिव यू फर्दर अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स व्हेन वन ऑन वन आप सब पे डिस्कशन करेंगे. डिस्कस वन ऑन वन. वन ऑन वन किस चीज को? इन चारों को इनसे बात करना, इनसे रिलेट करके बात करना कि क्या सच में ये मिशन स्टेटमेंट्स में या एरियाज ऑफ एक्शन में कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे. बोलो, बात समझ आई? ये क्लियर होता है? यस मैम. ठीक है. अब केपीआई सजेस्ट करते हैं. उसने क्या बोला था? एक रिक्वायरमेंट तो ये थी, ये समझना कि भाई इन ओरिजिनल को हम सीएसएफ क्यों नहीं बना सकते थे. दैट वी हैव आंसर्ड. व्हाट वाज द सेकंड वन? ही वांटेड अ रिकमेंडेशन पर CSF 2 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दे दो. यही था. These are the 4 CSFs. Now we have to give 2 performance indicators, KPIs. यानी 8 KPIs आएंगे टोटल. 16 मार्क्स अटेन करना तो कोई बहुत बड़ी डील ही नहीं हुई, अब तो ऐसा लग रहा है. Now how do we do that? First, greater protection and more support for those at risk of harm. Suggest करो 2 KPIs. प्रोटेक्शन उनको कैसे करोगे? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होंगे? आपकी परफॉर्मेंस अच्छी गई कि बुरी गई, ये इंडिकेशन कैसे होगा? आपने लोगों को पिछले साल कितना प्रोटेक्ट किया, आज कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं. बात समझे? अब ये प्रोटेक्शन वालों को कैसे बताओगे? ये ऐसे बताओगे, फीमेल्स की जो मैं बात कर रही थी, लेट सपोज, लेट इट बी अ सिंपल केस. लास्ट ईयर तक 100 फीमेल्स ईव टीजिंग की शिकार हुई बसेस में, और इस साल हुई 80. व्हाट डू यू से? हैव यू गिवन देम ग्रेटर प्रोटेक्शन? Yes. यस. तो केपीआई रखो कि आपके जो क्राइम का नंबर है, दैट कैन बी वन ऑफ द केपीआईज. अब इसमें सपोर्ट की क्या बात करोगे? सपोर्ट के लिए केपीआई बोलो. हाँ मैम, इसको उससे रिलेट कर सकते हैं क्या, नीचे जो अपेंडिक्स में था, लाइक रिस्पॉन्स टू एन इंसिडेंट. एब्सोल्युटली. सब मोर सपोर्ट होगा कि बिल्कुल. रेस्पॉन्स टाइम. आप सपोर्ट कैसे है? एक फीमेल है या एक बच्चा है या कोई भी आदमी है, ही इज इन ट्रबल, ही हैज मेट विद एन एक्सीडेंट. चलो, और ये जो एक्सीडेंट था ये रोड रेज था, तो क्राइम के अंडर आता है. इसने फोन किया. फोन करते ही आप कितनी देर में आए? आप आए 2 घंटे बाद में, तब तक उसकी जान निकल गई. लेकिन आप टाइम पे आ गए, आपने उसको बचा लिया. ये हम क्या कर सकते हैं? इसका एक रिकॉर्ड बना के रख सकते हैं. कब ये कॉल आती है,
आप कितने कॉल के कितने टाइम के अंदर अंदर उसके अंदर आ जाते हैं, मतलब पहुंच जाते हैं क्राइम सीन पे, इंसिडेंट के सीन पे. दैट टाइम रिकॉर्ड कैन बी केप्ट एज अ केपीआई. ठीक है, गॉट दिस? दैट कैन बी अ सपोर्ट. उसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि भाई ऑन एन एवरेज आपने कितनी जल्दी इसको अचीव किया, उसके बाद में कितने लोगों ने उसको ढंग से हैंडल किया. जैसे मैं अगर बताऊं, पुलिस क्या करती है, वेन एवर देयर इज एन एक्सीडेंट, वो फटाफट उसको रजिस्टर करा के भाग जाते हैं. सपोर्ट नहीं मिलता उन फैमिलीज को. इन्वेस्टिगेशन चलती है, सपोर्ट नहीं मिलता उन फैमिलीज को. लेट इट बी ऑन द पुलिस ऑफिसर्स टू प्रूव हाउ दे एक्सटेंडेड सपोर्ट. This support can be in terms of moral support. This support can be in terms of the procedures. Procedure का timeline बताना. तो KPI क्या बनाओगे? Were any timelines fixed for solving any incident or any investigation? Keeping a track of how many incidents were handled within the due time limit. That can be one of the KPIs. ठीक है? Got this? और ये उससे कर सकते हो कि वो तो पास पैटर्न इनका दिख भी रहा है कि वो पुअर होता जा रहा है. So if that shows an improvement कि आप इंसिडेंट्स में टाइम पे पहुंचते हो, that means आपने ये वाला केपीआई अचीव कर लिया. ठीक है, समझे? इसके 2 बन जाएंगे अब आराम से. मतलब तुम्हें मन से बनाने हैं. एपीएम में ये चीज लर्न नहीं की जा सकती. आप सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझ सकते हो कि सीएसएफ है क्या, केपीआई है क्या. बनाना आपको प्रैक्टिकल इससे ही है. अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बुक में से ढूंढते हैं, यार केपीआई चिपकाऊं यहाँ पे. अरे वो केपीआई वहां नहीं चिपकेंगे भाई, ये इसके केस वाले चिपकेंगे. गॉट दैट? क्लियर है ये? Yes, ma'am. अब दूसरे पे आते हैं. चलो सेकंड एरिया पे. हाँ जी बोलो नितिन, एनी प्रॉब्लम? नो मैम. चलो नाउ लेट्स कम टू दी सेकंड वाला, बी बेटर एट कैचिंग क्रिमिनल्स. बोलो 2 केपीआईज. कितने केस सॉल्व करे, कितने क्रिमिनल्स को कैच किया, राइट? गुड ट्रेनिंग एंड ऑल. बिल्कुल. कितनी ट्रेनिंग्स आपने, पर नहीं उसमें ट्रेनिंग मिल गई लेकिन क्रिमिनल्स कैच नहीं किए, तो क्रिमिनल्स कैच करने का केपीआई बताओ कि आपको, आपका बोनस हम इस चीज पे डिपेंड करता है. लास्ट ईयर आपने 10 क्रिमिनल पकड़े थे, इस बार आपने 12 क्रिमिनल्स पकड़े. दैट शुड बी अ केपीआई. नंबर ऑफ क्रिमिनल्स कॉट एंड प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. कन्विक्टेड, कन्विक्शंस. कन्विक्शन को सिक्योर करना. अरे तुम लोग पिक्चर नहीं देखते हो क्या? कन्विक्शन सिक्योर करना बोलते हैं इसको. मतलब एक चार्जशीट हर जगह हर कंट्री में बनती है. चार्जशीट पुलिस बनाती है. अब वो चार्जशीट उनकी खुद की इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे होती है. अगर इन्वेस्टिगेशन में अच्छे खासे प्रूफ्स वो प्रेजेंट कर देते हैं, मोर लाइकली चांसेस हैपन दैट दी मुजरिम इज गोइंग टू बी कन्विक्टेड. उसको मिलेगी, फिर वो सजा मिलेगी. लेकिन अगर पुलिस की चार्जशीट ढंग से नहीं बनी होती है, दैट ही कम्स आउट in the absence of evidence, he comes out of the court. वो भी एक केपीआई आप डाल सकते हो. नंबर ऑफ क्रिमिनल्स कन्विक्टेड. ठीक है, समझे? गॉट इट? ये 2 बन जाएंगे. चलो अभी लड़कियां बताएंगी तीसरे वाले का. रिड्यूसिंग द कॉजेज ऑफ क्राइम बाय इंक्रीज्ड इन्वॉल्वमेंट विद लोकल कम्युनिटीज. बोलो इसका क्या केपीआई बनाओगे? किसी भी ऑफिसर को अगर ये बोलना है कि भाई आपको इस एरिया में इंप्रूवमेंट करना है, वो कैसे प्रूव करेगा कि मैंने ये इंप्रूवमेंट किया कि नहीं किया? The strategies involved by them, like they are putting up the CCTV cameras in the सीसीटीवी societies. कैमरास नहीं, पर उसमें तो ये कम्युनिटी से लिंक करने की बात कर रहे हैं. कॉजेज की बात हो रही है. ध्यान से पढ़ो भूमिका, फिर वही गलती कर रही हो. रिड्यूसिंग द कॉजेज ऑफ क्राइम. व्हाट आर दे सेइंग? बाय इंक्रीज्ड इन्वॉल्वमेंट विद लोकल कम्युनिटी. पॉइंट हाईलाइट क्या है यहाँ पे? आपको लोकल कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्वमेंट करना है. नाउ हाउ डू यू प्रूव दैट यू रियली कनेक्टेड विद देम? बताओ क्या केपीआईज हो सकते हैं? नो क्लूज? हाँ मैम, एक एग्जांपल माइट भी, मतलब नहीं पता ठीक होगा. जैसे महाराष्ट्र पुलिस वो करती थी लोकल लोगों के लिए, लाइक मैं एग्जैक्टली बोलने वाली थी. बॉलीवुड का वो स्ट्रीट करते थे. प्लेज. ओके. एक तो स्ट्रीट प्लेस होते हैं, तुमने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस कई बार करती है ये, टू एजुकेट पीपल. लोकल कम्युनिटी से आप कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? उनको एजुकेट करके, इवेंट्स करके, उनसे 1-on-1 बेसिस पे बात करके. तो आपने कितने इवेंट्स अरेंज करे? दैट कैन बी वन ऑफ द केपीआईज. इवेंट्स अरेंज्ड टू गेट कनेक्टेड विद द लोकल कम्युनिटी.
to understand their level of problems? How many interviews, how many questionnaires, how many attempts or methods were utilized to get connected with the local community people so that we can understand how they have been dealing with problems? And then you can find out the cause of the main root cause of the main problem. तभी तो solution निकालेंगे. ठीक है? Fourth, Ashi, create a task force to develop skills in detection and prosecution of virtual crime. इसमें क्या KPIs होने चाहिए? किसी भी ऑफिसर को अगर बोलना है कि हाँ मैंने ये टारगेट मीट कर लिया, कैसे पता लगाओगे कि उसने मीट किया नहीं किया? परफॉर्मेंस कैसे मेजर करोगे उसकी? मैम केस सॉल्व. ओके, वन, कितने केसेस वर्चुअल वाले? ध्यान रखना वर्चुअल की बात हो रही है. तो पहले डिटेक्ट करना, मतलब वर्चुअल क्राइम के कितने केसेस डिटेक्ट किए गए, दूसरा सॉल्व किए गए, दैट इज प्रोसिक्यूशन. हाउ मेनी क्रिमिनल्स वर प्रोसिक्यूटेड, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ केसेस दे हैव डिटेक्टेड, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ केसेस दे हैव कॉट. समझे? मैम इसमें स्किल डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है आई थिंक. आप टास्क फोर्स जो बना रहे हो वो लोगों की स्किल डेवलप करेगी ताकि वो वर्चुअल क्राइम को डिटेक्ट कर सके और प्रोसिक्यूट कर सके. पुलिस फोर्स का ओके, टास्क फोर्स क्रिएट हो जाएगी. चलो दोनों पर्सपेक्टिव से डालते हैं. टास्क फोर्स क्रिएट हो गई, वो तो टास्क फोर्स का काम ही नहीं है ना. केपीआई कैसे डालोगे? व्हाट इज केपीआई? चलो अब जैसे मैं ये बोलती हूँ, थोड़ा सा केपीआई की टर्मिनोलॉजी को समझना. केपीआई का मतलब ये हो गया, किसी भी ऑफिसर ने अगर इस परफॉर्मेंस को मीट कर लिया तो उसको बोनस मिलेगा. इसको हमेशा ऐसे देखना. अब ये केपीआई इस केस में क्या होगा? टास्क फोर्स तो आप क्रिएट कर नहीं रहे हो, किसी ऑफिसर के ऊपर थोड़ी कि भाई चलो टास्क फोर्स क्रिएट कर लो सब जने. ये कोई केपीआई थोड़ी हो सकता है. क्या टास्क फोर्स ने वो स्किल डेवलप कर दी? ये कैसे पता चलेगा? So your main job is developing these skills so that the police can detect and prosecute virtual crimes. Now tell me, अब क्या होना चाहिए? Number of cases detected, number of cases prosecuted. समझ गए? यही तो करना चाह रहे थे अपन. और अगर ये हो गया तो टास्क फोर्स ने काम कर दिया, इसका मतलब. ठीक है? हाँ जी. ये क्लियर है सबको? बोलो 16 मार्क्स में इनफ चीज हो गई लिखने को? यस मैम. चलो अब नेक्स्ट वाली बताओ भाई. नेक्स्ट वाली है 13 मार्क्स की, वैल्यू फॉर मनी. बोलो वैल्यू फॉर मनी पे क्या बोलते हो? वैल्यू फॉर मनी पे तो सिंपल उसने बोला था जो 3 E's हैं ये समझा दो हमें कि इस केस में वो कैसे लगते हैं. यही बोला था. और ये और बोला था कि भाई वो एनेक्शर और यूज करके बताना. तो सबसे पहला काम 13 मार्क्स में आप पहले तो वैल्यू फॉर मनी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे. दो लाइन में. उसके बाद में आप करेंगे 3 E's को एक्सप्लेन और उनको लिंक करेंगे ये डील एंड पुलिस के केस से. मतलब हम यहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे. 3 E's कौन से? इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी. इकोनॉमी क्या होती है? आप कितने तरीके से, कितनी एफिशिएंसी, कितनी इकोनॉमी से आप रिसोर्सेज को यूज करते हैं, कितने लोएस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज यूज करके आप काम बना रहे हैं. ये डील एंड पुलिस के केस में लोएस्ट पॉसिबल काम कहाँ पे आएगा? और इन्होंने बोला भी कि उस अपेंडिक्स से जाके बात करना है इसके बारे में. चेक करते हैं एक बार अपेंडिक्स में हमारे पास इकोनॉमी की कुछ बात आ रही है क्या? बताओ कुछ यूज कर सकते हैं हम इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड? कॉस्ट ऑफ पुलिस. Cost of police force. कॉस्ट ऑफ पुलिस फोर्स. कितनी कॉस्ट थी ये? 2203, 2226, 2248. लेकिन Increasing. पुलिस फोर्स में पुलिस ऑफिसर्स का नंबर भी तो बदल रहा है. समझ रहे हो? रिलेशन. अब आपको इसमें से कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है. क्या कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है? पहले तो कैलकुलेशन ये करनी पड़ सकती है कितने पुलिस ऑफिसर्स हैं उसके हिसाब से कितनी कॉस्ट आ रही है. तो पर पुलिस ऑफिसर की कॉस्ट आ जाएगी. फिर कितनी पॉपुलेशन के ऊपर कितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये इफेक्टिवनेस की बात करेगा. इफेक्टिवनेस क्या होता है? व्हाट इज इफेक्टिवनेस? आप अपने गोल्स मीट कर पा रहे हो क्या कितने इफेक्टिवली? अच्छा सॉरी, तो नंबर ऑफ क्राइम सॉल्व्ड पे आ जाते हैं फिर इफेक्टिवनेस में. व्हाट इज इफेक्टिवनेस?
हाउ इफेक्टिवली आर यू मीटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, दैट इज इफेक्टिवनेस। तो आ जाओ, नंबर ऑफ क्राइम्स कितने सॉल्व हुए, नंबर से पता नहीं चलेगा। टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में जितने भी क्राइम्स हो रहे थे, क्राइम्स कितने रिपोर्ट हो रहे थे, 541,735 क्राइम्स रिपोर्ट हो रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? इसी में से 297,954 सॉल्व किए गए हैं, ये बताओ पहले तो, बोलो बोलो। यस मैम, ये तो परसेंटेज ऑफ केसेस सॉल्व निकाल सकते हैं हम। टोटल क्राइम्स रिपोर्ट हो रहे थे 541,735, 541,735, इसमें से आपने सॉल्व कर दिए 297,954, ये आपने सॉल्व कर दिए। वायलेंट केसेस रिपोर्ट कितने हो रहे थे, ये तो हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। टोटल क्राइम्स में से वायलेंट केसेस इतने, बाकी नॉन वायलेंट होंगे, चोरी चपाटी होगी जिसमें कोई वैसी वायलेंस, किसी को भी चोट वोट नहीं लगी होगी। इतनी पॉपुलेशन के अगेंस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स, ये क्या बताएगा? आपकी एफिशिएंसी बताएगा, कितनी एफिशिएंसी से आप काम कर रहे हैं, वो क्राइम सॉल्व भी बता सकता है। तो दोनों तीनों चीजों में आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। ध्यान से देखो, वापस से सुनो। नंबर 1 इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब आप कितने हिसाब किताब से इनपुट्स या रिसोर्सेज को यूज करते हैं। इकोनॉमी हम कैसे देखेंगे? पहली बात तो कितनी पॉपुलेशन पे कितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, फिर इन पुलिस ऑफिसर्स के हिसाब से कॉस्ट क्या आ रही है, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनकी कॉस्ट क्या आ रही है। हम ये इकोनॉमी में बात करेंगे, टोटल की बात मत करना, कॉस्ट्स पर पुलिसमैन या पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, हम उसकी बात करेंगे। कॉस्ट तो अगर बढ़ रही है तो पुलिस वाले भी बढ़ रहे हैं, तो फिर आप एफिशिएंसी की बात नहीं कर पाओगे ना। जैसे चलो हम इसको कंपेयर एक एक नंबर को कर लेते हैं, कितनी कॉस्ट आ रही है, 2248 मिलियन, 37,930 पुलिस वालों पे आ रही है। फिर 222,6 कितने पुलिस वालों पे आ रही है, 38,005, ये मिलियन है, दिस इज मिलियन कॉस्ट। जरा कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है ये, हाउ मच मिलियन इज दिस। 5.92 आएगा। 5.92, 5.92 ये कितना आ रहा है, 5.85। कहीं इकोनॉमी दिख रही है? इकोनॉमी तो नीचे चली गई। हम यहाँ पे 5.85 मिलियन का खर्चा आ रहा था एनुअली पर पुलिसमैन पे, ये हो गया 5.92, तो इकोनॉमी तो गई। लाइकवाइज इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर स्टाफ कॉस्ट। एक चीज का ध्यान रखना, चाहे वो एपीएम हो चाहे वो एसबीएल हो, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं होता कि इसका तरीका यही था कैलकुलेट करने का। इट कैन बी एनीथिंग, बट यू नीड टू प्रूव कि आप इसको किस रेफरेंस में कैलकुलेट कर रहे हैं। इकोनॉमी हम देखते हैं हमेशा इनपुट के रेफरेंस से। इनपुट पुलिस डिपार्टमेंट में क्या होगा, इनकी सैलरीज, इनके ऊपर लगने वाली कॉस्ट। ठीक है, दूसरी पे बात करते हैं। दूसरा वाला क्या ई था, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी। पहले एफिशिएंसी ले लूं। मैम जितने फैक्टर्स हमने इकोनॉमी के लिए सबको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना होगा। मतलब जैसे परसेंटेज, जैसे अभी हमने निकाला नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स का, हाँ, वैसे मतलब जितने भी फैक्टर्स हमने इकोनॉमी के लिए लिए थे कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वैसा कैलकुलेट करना होगा। कर दो। आई मीन वहां कहीं कैलकुलेटर को पे जाके नंबर डालना है बस। वहां पे कहीं लिखा था ना कि कैलकुलेशंस नहीं करनी है इसमें। रुको, वो मेजर कैलकुलेशंस या अदर कैलकुलेशंस के लिए कुछ कह रहा था। वो सीएसएफ और केपीआई वाले पॉइंट के लिए ये आई थी। ओके, इसमें नहीं करनी है, ठीक है। ठीक है, चलो अब एफिशिएंसी क्या होती है कि आप कितनी एफिशिएंटली प्रोसेस चला रहे हैं जिससे इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का क्या रिलेशन है भाई, यहाँ पे इनपुट आउटपुट क्या है,
कितने क्राइम्स हो रहे हैं और कितने क्राइम्स आप सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज इनपुट आउटपुट। यहाँ पे क्राइम सॉल्व करना ही आपका काम है ना। तो टोटल कितने क्राइम्स हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्राइम्स हो रहे हैं 541 735। इसमें से आप सॉल्व कितने कर रहे हैं, ये 297 954। ये तो करंट ईयर की सिचुएशन है। व्हाट वाज द सिचुएशन लास्ट ईयर? आउट ऑफ हाउ मेनी 530? अरे यार ये तो रेशो कम, क्राइम्स भी कम थे और सॉल्व भी ज्यादा हो रहे थे। बोलो कितना आ रहा है ये? 55% and 56.68. इट वाज बेटर लास्ट ईयर, मच बेटर। यानी एफिशिएंसी भी आपकी नीचे गई है। अब इफेक्टिवनेस पे आते हैं। इफेक्टिवनेस क्या होती है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कितने अच्छे से मीट कर पा रहे हैं। यहाँ पे कैसे गोल्स को मीट कर पा रहे हैं हम कैसे पता लगाएंगे? गोल्स को बताओ, कैसे पता लगा पाएंगे? गोल Response था to क्या आपका? incident. आपका गोल था प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट करना टू दोज पीपल हु आर एट रिस्क। दूसरा, क्रिमिनल्स को पकड़ना। तीसरा, कॉजेज ऑफ क्राइम पकड़ना। और चौथा, वर्चुअल क्राइम को पकड़ना। यही थे। उनको मेजर करते हैं जरा, उनमें हमारी इफेक्टिवनेस कितनी रही है। पहले पे बात करते हैं, ये प्रोटेक्शन ऑफ वीकर वाला। ये ध्यान है, ये जो 4 टारगेट्स रखे गए थे उनको मेजर करेंगे कि हम इनको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इनके आसपास से बात करना, क्योंकि ये केपीआईज तो नए अभी बने हैं, जो स्टैटिस्टिक्स है वो पुराने सालों के हैं। पर इफेक्टिवनेस से जब इसको लिंक करेंगे तो ऐसे लिंक करना पड़ेगा कि ग्रेटर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू दोज एट रिस्क, वो क्या होगा? कौन है रिस्क पे? ये वायलेंट क्राइम्स वाले। ठीक है, अभी वायलेंट क्राइम्स का क्या देखते हैं कि हमने इनको प्रोटेक्शन दी है क्या। हमारे पास टोटल क्राइम्स आ रहे हैं 541 735 के। इसमें से ये 108 347 थे जो खतरनाक वाले क्राइम्स थे। ये तो करंट ईयर का स्टेटस है। पिछले साल क्या था, ये इंप्रूव होना चाहिए था, तो पता चल जाएगा कि हम इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। करना जरा ये कैलकुलेशन एक बार। दिस इज फॉर प्रीवियस ईयर। दोनों ही 20% है मैम। एग्जैक्ट 20% आ रहे हैं। तो कहाँ प्रोटेक्ट कर पा रहे हो आप? पहले भी 20% ही हुआ करता था, अब भी 20% ही हो रहा है। यानी आपने तो कोई इसमें प्रोटेक्शन नहीं दी, कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है इसमें। तो आप ये इफेक्टिवनेस के मामले में, एटलीस्ट प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट वाले में तो गड़बड़ हो गया मामला। ये सॉल्व वाला, ये क्या हुआ दूसरा कि क्राइम्स कितने सॉल्व होते हैं, ये बेटर आ रहा था कि अपना सॉल्व वाला भी कम हो 56 गया और था ना, 55 आ रहा था। 56 और 55। सॉल्व वाले में, दूसरे वाले में भी ये तो बैंड बज गई, ये भी फॉल कर रहा है। अब कॉजेज ऑफ क्राइम, कॉजेज ऑफ क्राइम चेक करते हैं। कहाँ है कॉजेज ऑफ क्राइम? कॉजेज ऑफ क्राइम का यहाँ पता कैसे नहीं चलेगा? जब कॉजेज ऑफ क्राइम आप पता कर लेते हैं ना, तो क्राइम्स कम हो जाते। क्या क्राइम्स कम हो रहे हैं क्या? 520 से 530, 530 से 541, क्या पता कर रहे हो आप कॉजेज का? ये कॉजेज पता करने का रीजन क्या था? ताकि क्राइम्स को हम रोक सकें, कम कर सकें। कहाँ कम हो रहे हैं ये तो कोई कम नहीं हो रहे। कंप्लेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। कंप्लेंट से भी ले लो, बिल्कुल कंप्लेंट से ले लो। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे भी नहीं काबू में आ रहा है मामला। वेयर इज द इफेक्टिवनेस? और लास्ट, वर्चुअल क्राइम। वर्चुअल क्राइम का पता कैसे चला है? वर्चुअल का तो इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। तो क्या लें इसमें, फिर नोट डालना वर्चुअल क्राइम के लिए। इसमें सोल्यूशन चेक करना एक बार, कोई खोलना जरा वर्चुअल क्राइम के लिए कुछ बताया क्या? कोई स्टैटिस्टिक तो है ही नहीं वर्चुअल क्राइम पे, क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ। और फिर तो मैं तो यही लिखूंगी कि यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एज नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट वर्चुअल क्राइम, it seems that there has been no improvement in detection and identification of virtual crime because there is no data given. What should I write here? ठीक है, समझे? अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी ACCA के पेपर्स में यू डू नॉट पुट अप नंबर्स। तो ये नंबर्स रिपोर्ट में सिर्फ यही आएंगे, उसके अलावा कोई नंबर्स मत डालना।
नंबर्स में आ जाता है ना तो वो फिर बड़ा किडिश सा लगता है. सो रिपोर्ट नंबर्स में नहीं बनती है, पैराग्राफ्स में बनती है. बहुत एसेंशियल हो तो नंबर्स डलते हैं. क्लियर है? ये ठीक है? वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा बाबा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस मैम, और मैम इसको थोड़ा ट्रेंड वाइज भी कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल, कोई इसका स्ट्रिक्ट रूल नहीं है नितिन, आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस तीनों में पॉइंट्स उनके हिसाब से जाने चाहिए. एक ही पॉइंट तीनों में चला जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप कितनी कंप्लेंट्स लेते हैं उसके वर्सेस कितने क्राइम्स आप सॉल्व करते हैं, ये आपका इकोनॉमी तो नहीं दिखाएगा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दिखाएगा. लेकिन उसमें बात ये करना, एफिशिएंसी की तो बात ये हो गई कि हम कितने अच्छी तरह से अपने प्रोसेसेस चला रहे हैं. प्रोसेसेस इन केस ऑफ डील एंड पुलिस इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ केसेस दे आर रिसीविंग एंड हाउ मेनी दे आर सॉल्विंग. और इफेक्टिवनेस की बात, इफेक्टिवनेस मतलब मेजर गोल्स जो थे उनमें से मीट एक ये भी करना जरूरी था, क्रिमिनल्स को पकड़ना. तो यही वाला पॉइंट दोनों जगह यूज होगा. आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, जस्टिफाई आपको तरीके से करना है. ठीक है, गॉट इट? चलो अब एनएफपीआईज पे आते हैं. एनएफपीआईज वाला तो सिंपल सा है, इसीलिए 7 नंबर का दिया है इन्होंने. यशस्विनी, यशस्विनी यशस्विनी चलो आशी, यू टेल मी. यशस्विनी सुन नहीं रही है. एनएफपीआईज रिपोर्ट में, एनएफपीआईज के बारे में हमने क्या बोला था, क्या सुनना चाह रहे थे ये सीईओ हमसे एनएफपीआईज के बारे में? कि सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स अच्छे नहीं है. The CEO wants her to change focus towards use of NFPIs and so to understand why financial indicators are not particularly useful for public sector organizations. यानी पहली बात तो आपको रिपोर्ट में बात ये करनी है, why financial performance indicators are not relevant in public organizations. क्यों? क्योंकि इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है. ये सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख के काम नहीं कर सकते, इनको नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स भी चाहिए होते हैं. द सीईओ वांट्स यू टू एक्सप्लेन दिस इन योर रिपोर्ट. यानी हमें ये बताना है कि सिर्फ फाइनेंशियल मेजर्स से काम नहीं बनता. दूसरा, स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में तो काम बिल्कुल ही नहीं बनेगा. 7 नंबर में आइडियली से यू शुड राइट 3 पॉइंट्स, नॉट इन द नेम ऑफ पॉइंट्स, पैराग्राफ्स की तरह. पहला बोलो, क्यों पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में एफपीआईज रेलेवेंट नहीं होते हैं और एनएफपीआईज रेलेवेंट होते हैं? भूमिका बोलो. Because their main focus is not for attaining the profits. Not for profit, they are not existing for profit. तो आप नंबर्स पे जाके एनालिसिस कर ही नहीं सकते. इनका इंटेंशन प्रॉफिट के अलावा भी कुछ होता है. अब यहाँ पे थोड़ा सा ना इमोशनल बात करना. यहाँ पे एक बात की गई थी कि इनका जो पैसा आता है ना, वो कहाँ से आता है? टैक्स पेयर की कुछ बात हुई थी. हाँ, जनरल टैक्सेशन से. हाँ, तो वो जरूर वैल्यू फॉर लिखना मनी है. बिल्कुल, कि वो जनरल टैक्सेशन से जो इनका पैसा आता है ना, वो वाला पैसा प्रॉफिट मेकिंग के लिए यूज नहीं होता, जबकि इनको प्रूव क्या करना है कि वो पब्लिक का पैसा ये एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हो, जो बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी सर्विस है वो ये दे रहे हो. तो प्रॉफिट नहीं चल सकता. इसमें आपको एटलीस्ट 3 लाइंस लिखनी है, जिसमें एक तो बात ये करना कि इनकी फंडिंग टैक्सेशन से होती है. दूसरा, ये पब्लिक को जवाबदेह है, मतलब दे आर रेस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू द पब्लिक. Why? They have to serve the public. Police is for the service of people. And without any cost karna hai, you are not charging anything for their service. How can you evaluate the profit and financials for their performance measurement? So ye, there is no charge which exists. So profit cannot be seen. Second reason bolo, Ashi, second reason bolo. क्यों फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स नहीं देखने चाहिए ऐसी एंटिटी के केस में? मैम क्योंकि इनके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. एब्सोल्युटली, ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? दे डोंट जस्ट वांट टू गेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दे वांट व्हाट? वैल्यू फॉर मनी. दे वांट जस्टिस फॉर एम्प्लॉइज. दे वांट डिफरेंट एरियाज ऑफ द सोसाइटी टू बी एड्रेस्ड इन डिफरेंट वेज. जैसे टास्क फोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वर्चुअल क्राइम पकड़ने के लिए लोगों को तैयार करना. उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा.
अब ये जिन पुलिस ऑफिसर्स को तैयार करेंगे उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उनका प्रमोशन हो जाए। वो प्रमोशन कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा क्राइम पकड़ के होगा। एक दूसरी टीम होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि भाई आपको कॉजेज जो है ना सोसाइटी में से वो ढूंढने हैं कि क्राइम्स के कॉजेज क्या है। उनका मोटिव क्या होगा, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम जितने कॉजेज पकड़ लेंगे, जितने क्राइम्स रोक लेंगे, हमारा प्रमोशन उस बेसिस पे होगा। यानी कुछ एम्प्लॉयज होंगे जो क्राइम रोकने में बात करेंगे, कुछ बात करेंगे कि हम केसेस सॉल्व कर दें। केस तो सॉल्व तब होंगे ना जब क्राइम होंगे, कॉन्फ्लिक्ट भी कर गए ऑब्जेक्टिव्स। और तीसरे बोलेंगे कि भाई वर्चुअल वर्ल्ड की बात करो। That means there may be multiple objectives. Along with that, there may be conflicting objectives. वो भी यहाँ पे explain करना, multiple and conflicting objectives. That's why again you cannot simply use profit maximization होता है उनके तो कुछ ज्यादा dispute ही नहीं है. Everybody is working for profit maximization. The company exists for profit maximization. इनके केस में वो चक्कर ही नहीं है. तीसरा बोलो नितिन, तीसरा. हाँ, वो पब्लिक सर्विस वगैरह में है ऐसा। इसमें एक ये होता है कि इनके अनडिफाइनेबल होते हैं कई अनडिफाइनेबल, क्या They are बोलते हैं? focusing on the whole society, not just Whole a particular society. group. हाँ, और दूसरा अनडिफाइनेबल मेजर्स भी होते हैं इनके. अब ये पॉइंट लिखना है आपको कि ये पब्लिक सर्विस के लिए है. कैसे डिफाइन करोगे सर्विस दी कि नहीं दी? दूसरा, भूमिका, व्हाट डिड यू से? Focus on the whole society, not on a particular community or a part. फोकस ऑन अ बिगर ग्रुप. ये दोनों में प्रॉब्लम क्या आएगी? पब्लिक को सर्व किया नहीं किया, कैसे डिफाइन करोगे? 2 किलो अच्छा सर्व किया पब्लिक को, 4 किलो केसेस ज्यादा सॉल्व करे. कैन यू जस्ट से दैट? Profit making organizations can say that our sales are 50% up, profits are 50% up. How do they define this? So their measures of success, they cannot be defined. That's another problem. So for 7 marks, this is more than enough. और ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा याद आ रहा है कि ये सीधी पीपीटी का मैटर उतर के आ रहा है यहाँ पे. यस मैम. मैम इसमें पॉलिटिकल गेन का भी कुछ होता है ना? वो प्रॉब्लम्स में होता है कि ये किस चीज से जूझती हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से. ओके. यहाँ पे भी हो तो रही था ना, उसने अपने मैनिफेस्टो में बोला था तो वो ज्यादा हिट उसी मिशन पे कर रही थी क्योंकि यस मैम. मैनिफेस्टो में बोला था. ये भी इसके ड्रॉबैक में आ रहा है. ठीक है, चलो लास्ट पे आते हैं. अब लीग टेबल्स पे. लीग टेबल्स पे क्या बोलते हो? लीग टेबल्स के लिए नाउ देयर आर 10 मार्क्स एलोकेटेड. सो 10 मार्क्स के लिए आई विल से 5 न्यू पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. लीग टेबल्स. लीग टेबल्स पे वापस से यहां देखो हमें क्या क्या करना था. लीग टेबल्स. सो लीग टेबल्स में हमें बताना है कंसर्न अबाउट द पुलिस ऑफिसर्स रिएक्शन. रिएक्शन पे बात करना मत भूलना. आपके पुलिस ऑफिसर्स का रिएक्शन क्या रहेगा? असेसमेंट ऑफ यूज ऑफ इंटरनेशनल पुलिस फोर्स परफॉर्मेंस लीग टेबल. यूज ऑफ इंटरनेशनल लीग टेबल. और कोई चीज जिसमें हमें लिखने को चाहिए इसमें? Thereby he also needs to how the use and targets might affect a behavior. ठीक है, so more or less ये आ गया. यानी मुझे 5 मार्क्स का तो रिएक्शंस के ऊपर कमेंट डालना है, 5 मार्क्स का इंटरनेशनल लीग टेबल के यूज पे डालना है. बोलो, पहले तो ये बोलो, इंटरनेशनल लीग टेबल अगर यूज की जा रही है उसका इंपैक्ट बताओ ऑर्गेनाइजेशन पे. हमेशा ध्यान रखना, व्हेनेवर द क्वेश्चन आस्क्स यू हैव टू गिव बोथ. क्या बोथ? पॉजिटिव इंपैक्ट एज वेल एज नेगेटिव इंपैक्ट. सबसे पहले हम लीग टेबल को एक्सप्लेन करेंगे. प्लीज एक्सप्लेन लीग टेबल फर्स्ट. एक्सप्लेन लीग टेबल. ये आपका एक्सप्लेनेशन अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क्स का होना चाहिए. तो अपने आप ही हमारे पास ये 4 मार्क्स के रह जाएंगे. तो 4 इंफॉर्मेशन नहीं दे देंगे, दैट्स गुड टू गो. अब बात करते हैं इसके फायदों पे. द एडवांटेजेस, बिकॉज इंपैक्ट होगा तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा. गलती वहां करते हैं स्टूडेंट्स जहां सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करते हैं, दे स्किप गिविंग द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग अप्लाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो टॉक अबाउट बोथ एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस. बोलो, एडवांटेजेस में क्या आएगा? क्या फायदा होता है एक लीग टेबल का? रैंकिंग दिख जाती है. ओके. रैंकिंग दिखने से क्या होगा? आपके जो फोर्सेस हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी रैंक दिखने लग जाएगी. जब उनके पास रैंक स्कोर आएगा तो क्लियर दिख जाएगा कि उनको कहाँ फोकस करना है, कहाँ इंप्रूव करना है. वो अपने आप प्रायोरिटी सेट करेंगे इस चीज पे
कि कहाँ पे कौन से बिहेवियर से इनको प्रमोशन मिलेगा, वो अपने आप रैंक कर लेंगे इस चीज से। क्योंकि एक सेंटेंस ना बार बार इसमें यूज हो रहा था, जिस चीज का मेजरमेंट हो जाता है ना वो हो जाता है। वो व्हाट वाज दैट, व्हाट समथिंग व्हिच इज मेजर्ड गेट्स डन, वो लिखना है यहाँ पे। याद आ रहा है? समथिंग विच गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। तो अब यहाँ पे लीग टेबल में अगर मेजरमेंट हो गया परफॉर्मेंस का, नंबर ऑफ केसेस सॉल्व्ड और रैंकिंग आ गई, इट एक्ट्स एज अ मोटिवेटर फॉर द ऑफिसर्स, सो दे विल गेट मोटिवेटेड। दैट्स एडवांटेज 1। नंबर 2, रैंकिंग की वजह से दे विल बी इन अ पोजिशन टू सी देयर स्कोर्स, एंड इन स्कोर्स से दे कैन इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो दो फायदे तो इसके एडवांटेजेस के हो गए। अब इसके चैलेंजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या आएंगे लीग टेबल के यूज के, मतलब बिहेवियर पे क्या इंपैक्ट आएगा। पहले, कई इंप्लॉइज तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्यों? जब वो अपनी रैंक नीचे देखेंगे। बोलो, फर्क नहीं पड़ेगा? आज तक तो कोई रैंकिंग दी नहीं जा रही थी, आज सडनली रैंकिंग देने लग गए, वो भी बोर्ड पे और बना के देने लग गए। इट वॉज वेरी इजी अर्लियर, जब कोई कंपैरिजन ही नहीं होता था। तो डिमोटिवेशन आएगा। दूसरा क्या आएगा? दूसरा, एक विंडो ड्रेसिंग होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को आर्टिफिशियल बना सकते हैं। क्या बोलते हैं इस चीज को, जब बिहेवियर को आर्टिफिशियल बना लेते हैं, क्या बोलते हैं उस चीज को? मैम मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कर सकते हैं नंबर्स के साथ। यस क्यों? मैम। क्योंकि उनको अपनी रैंक इंप्रूव करनी है ना। सो दे कैन प्रिटेंड टू हैव अचीव्ड अ टारगेट व्हिच एक्चुअली दे हैवंट। वो ये कर सकते हैं ताकि उनकी रैंक बेटर दिखे। दूसरे जो मैनिपुलेशन नहीं करेंगे वो क्या करेंगे, वो बेचारे वैसे डिमोटिवेट हो जाएंगे। तीसरी चीज, कई बार ये हो सकता है कि रैंक बहुत ही नीचे आ गई, तो वो हो सकता है अटेम्प्ट करना ही बंद कर दें। जब ये दिख रहा है कि यार ये तो रैंक इतनी नीचे है, करने का मतलब क्या है, अब नहीं इंप्रूव हो सकते। जैसे रेस होती है ना, रेस में अगर दिख रहा है कि यार अब ऑलरेडी 7-8 आदमी आगे निकल गए, समटाइम्स पीपल में स्टॉप इवन फाइटिंग। और एक चीज हो सकती है, कई बार रैंकिंग बियॉन्ड देयर कंट्रोल फैक्टर्स के बेसिस पे खराब हो जाए किसी एम्प्लॉय की। ये कुछ साइड इफेक्ट्स इसके हैं, तो आप ये साइड इफेक्ट्स लिखेंगे। एंड मेजरली ये दो नंबर की तो ये आ गई। रिएक्शन में अब आप डालोगे कि वो डिमोटिवेट हो सकते हैं, मैनिपुलेशन पे आ सकते हैं, वो अटेम्प्ट करना बंद कर सकते हैं। यहाँ पे फायदों की बात और नुकसान की बात अपन कर ही रहे हैं, ठीक है। सो मोर और लेस यू विल गेट सम पॉइंट्स। ये एक बार पॉइंट्स लिख देती हूँ। एक, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लीग टेबल 2 मार्क्स की होगी। फिर बात करना लीग टेबल के फायदे, एडवांटेजेस में क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। उसके बाद में उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, बिकॉज समथिंग विच इज मेजर्ड गेट्स डन, वो वाला इसमें स्टेटमेंट लिखना। तीसरा फायदा इसमें क्या होगा, इट विल बी इजी टू आइडेंटिफाई द एरियाज विच आर टू बी इम्प्रूव्ड। आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। ये तो 3 फायदे हो गए। तीसरा, इसके नुकसान क्या होंगे, क्या लिखूं इसको, एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स में क्या क्या आएगा, दे कैन गेट डिमोटिवेटेड, देन दे कैन मैन्युपुलेट द नंबर्स, then they can stop trying when they see that their targets or their ranking has gone too below। तो अब वो इंप्रूव करना मुश्किल है। अच्छा, रिजल्ट्स बायस भी हो सकते हैं, बायसनेस भी आ सकती है। रिजल्ट्स कैन बी बायस्ड, हाउ, रैंकिंग देने वाला आदमी कितना ईमानदार है उस पर भी तो फर्क पड़ेगा ना, कि रैंकिंग दे कौन रहा है। और लास्ट वन, द रिजल्ट्स कैन बी बेस्ड ऑन फैक्टर्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल, फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय या ऑफिसर। कितने पॉइंट्स पे देखो टोटल, और सब पे दो लाइनें लिखनी है आप लोगों को। मोटिवेट पे 2 लाइन आएंगी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुड पॉइंट्स। एंड इन 8 गुड पॉइंट्स पे 2 लाइनें, सो 8 और ये 2 मार्क्स, ये हो गए 10 नंबर। प्रोफेशनल मार्क्स कैसे मिलेंगे, फॉर्मेट पे मिलेंगे। जब रिपोर्ट लिख दोगे तो लास्ट में क्या लिखोगे, थैंक यू, योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली।
What do you write to close the report? Concluding event. A concluding statement लिखते हैं. At the end, we would highlight that this is the league table or ये CSFs. They are expected to work for the betterment of the DP, this police department. And it can be achieved by taking up more steps. बस तो आपको लास्ट में रिपोर्ट के कंक्लूडिंग स्टेटमेंट या कंक्लूडिंग पैराग्राफ देना होता है. एकदम वो ब्लास्ट सा करके ना वो बोलते हैं ना एकदम छक्का सा मत मार देना बॉल का मुंह पे कि खत्म अब बस ये यहाँ तक हो गया और बात खत्म. नो, उसमें लिखना लास्ट में as a concluding statement it can be mentioned that the above mission statement broken into KPIs and valuation and value for money evaluation of NFPIs and league table use is definitely expected to bring a big change in the जो भी डिपार्टमेंट का नाम है. बस और यहाँ पे आप खत्म कर देंगे. नो योर्स फेथफुली सिंसियरली वो चिट्ठी में होता है, रिपोर्ट में नहीं होता. कंक्लूजन आके रिपोर्ट खत्म. क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन है.